Page 11. There are three refugee children when partition between India and Pakistan, but their daily journey, the writer walked down and he talked to people about the situation. Now, at one station, a group of refugee children surrounded him and they disturbed the talking to the people. Now, those children were the sons and daughters of the refugees. Here, the writer explicitly describes about the pitiable condition of refugee children. The refugee children were the sons and daughters. They were very poor. The expression, the hint is given on the blackboard. They were poor daughters. Understand, friend? These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket by William C. Douglas. Here the writer says that refugee children came from Pakistan to India for shelter. Now the para, these were refugee children वे शरणार्थी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan got decreed, partition means division, decreed decided. In 1950, when division was decided, it means India became free, and in 1950, the people left their residence and they came to India. Now, they were very poor. Writer says that hundreds of thousands of people pulled up their roots. It means hundreds of thousands, सैकड़ों हजार लोग जो हैं वे pulled up means left their places, roots and changed their residence. उन्होंने अपने वहाँ आवास छोड़ दिए और वो यहाँ पाकिस्तान से इंडिया एक शरण पाने के लिए आए. 9 million people left Pakistan. It means 9 million, 1 million is equal to 10 lakh. 9 million, 90 lakh people left Pakistan and they came to India. Driven by the fear of religious fanaticism. Driven, it means forced. By the fear of religious fanaticism, it means madness of religion. धार्मिक, it means धर्मांता, it means धार्मिक पागलपन की वजह से वो वहां से इंडिया आए. धार्मिक डर की वजह से वो पाकिस्तान से इंडिया आए. They were poor. Here the hint is given at the whiteboard that they were poor. Very, very most important expression. They were poor people to start with. It means when they started, when they left Pakistan, they were poor. But the long journey made long distance made their journey worse. Now, in the beginning they were poor. They had no sufficient food, money. Understand? Now they were poor people started. In the beginning they were very poor. शुरुआत में जब वहाँ से रवाना हुई बहुत गरीब थी. They were poorest. It means the long distance, long journey made their condition worse. Bad, worse, worse. और बुरी हालत हो गई. As they begin their long trek. Trek here means journey. लंबी यात्रा पर जैसे रवाना हुई उनकी हालत और खराब होती गई. For all they could carry, it means जो कुछ भी ले जा सके अपने साथ was a bit of food. It means a small amount of food. बहुत थोड़ा सा भोजन अपने साथ ले जा सके. And a few belongings here means things they could carry a few things and a short amount of food. Now soon they were out of food. It means they had no sufficient, they had no enough food, they had no enough money, they had no enough things. Now they became out of food, out of things. Now due to the lack of food, it means जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, भोजन लाए थे रास्ते में समाप्त हो गया तो क्या हुआ? आउट ऑफ फूड. जैसे वो भोजन रहित हुए. A few days after, it means after some days, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद they started, मतलब जब रवाना होने के कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? They begin to fall. भूख की वजह से, ड्यू टू द हंगर, ड्यू टू द वीकनेस, due to they were
ऑन द स्टेज ऑफ स्टारवेशन. इट मीन्स भुखमरी की कगार पे आ गए, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन. नाउ दे बिगिन टू फॉल ड्यू टू द वीकनेस. दे स्टार्टेड टू फॉल ऑन द वे साइड. रास्ते में रोड के किनारे क्या हुआ, वो कमजोरी की वजह से गिरने लगे ड्यू टू द वीकनेस ऑफ हंगर. वीकनेस क्यों आई? ड्यू टू द हंगर दे बिकेम वीक एंड ड्यू टू वीकनेस दे बिगिन टू फॉल ऑन द रोड साइड एंड डाइड हियर दे फॉल. और जहां भी वो गिरे वहीं पर मर गए. अंडरस्टैंड? सो हियर द राइटर डिस्क्राइब्स अ वेरी पिटिएबल, वेरी miserable condition of the refugees. Now in the second paragraph, the children selling basket were sons and daughters of these refugees. Writer says that who were children? Who were those children? Those children were the sons. वे बच्चे कौन थे? इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो कह रहा है वो बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दोज रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे. दी और पेरेंट्स और रिलेटिव्स, उनके इट मीन्स बच्चे, उनके माता पिता और उनके रिलेटिव्स कितने उनके जो सगे संबंधी थे, गैदर्ड इन द सिटी, शहरों में एकत्रित हो गए थे. कहाँ? सेटिंग अप स्टॉल, दैट मीन्स फिक्सिंग अप स्टॉल. व्हाट इज स्टॉल? स्मॉल वुडन टेम्परेरी शॉप्स. स्मॉल वुडन टेम्परेरी शॉप, जो अस्थायी तौर से लकड़ी की बनाई हुई दुकानें थी, उनको स्थापित करके मैन्युफैक्चरिंग, काम क्या किया था? मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स मेकिंग सिंपल आइटम, छोटी छोटी वस्तुएं बनाना चालू किया. टाइम टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स आदि, और अपनी जीविकोपार्जन इट मीन्स जीविका चलाने के लिए अर्जन करना शुरू किया, प्रयास किया. वहां पर जो मार्केट, जो स्थान क्या हुए थे? ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, इट मीन्स मच पैक्ड. नाउ दे लिव्ड, वो स्थान, वो मार्केट जो पहले से ही व्यस्त थे, पहले से ही भीड़ थी, वहां पर उन्होंने अपनी दुकानें स्थापित की और फैंस और बास्केट को मैन्युफैक्चर किया और जीविकोपार्जन चलाने के लिए काम करना शुरू किया. दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास. वे कहाँ रहते थे? राइटर डिस्क्राइब्स देयर कंडीशन. शी सेज दैट दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास. वे कपड़े और घास से बनी हुई जो शेड हुआ करती थी, एक तरह से छप्पर टाइप का, उसी में रहते थे. दैट लाइनेड टप्पर टाइप के शेड कहते हैं उनको. दैट लाइनेड द स्ट्रीट, और वो लाइनेड द स्ट्रीट इन मेकिंग अ लाइन, पक्तिसा थी, लाइनेड में थी. अंडरस्टैंड? द पीजेंट्स फार्मर्स एमंग दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों में जो भी किसान थे, had been accustomed means among them there were many kinds of the people. Some of them they are farmers, some of them they are laborers. Understand? So among them there were some farmers. So the writer describes about the peasant. He says that among them there were peasant. कुछ किसान भी थे. Had been accustomed, वे अपने आप को accustomed means habitual, अपने आप को अभ्यास कर चुके थे. To little are their lives for the annual income of agriculture family does not exceed on an average. Here it means little, all here means all means throughout their life. संपूर्ण जीवन भर अपने आप को वो for the annual income of agriculture family. Here writer describe that जो किसान थे उन शरणार्थियों में वे अपने आप को वही जो little it means बहुत थोड़ी सी जो आमदनी थी उसी में अपने आप को अपना जीवन बिताने के अभ्यास कर चुके थे. ऑल देयर लाइफ फॉर द एनुअल इनकम, जो उनकी ईयरली इनकम थी. एनुअल मीन्स ईयरली, जो वार्षिक आमदनी थी. और फिर एग्रीकल्चर फैमिली लेखक बताता है कि जो वार्षिक किसान की आमदनी उन दिनों होती थी वो डज नॉट एक्सीड मीन्स बी ग्रेटर देन, उससे ज्यादा. ऑन एन एवरेज $100 अभी एक वर्ष में $100 से औसतन ज्यादा नहीं होती है. कैलकुलेशन करें आप तो अगर $100 a ईयर आपकी इनकम है तो राइटर डिस्क्राइब कहता है तो द एवरेज अनस्किल्ड लेबर्स, जो अकुशल मजदूर थे, मेक्स 30 सेंट जो अकुशल, जो स्किल वाले थे, कुशल थे, उनकी ये आमदनी थी. अकुशल थे वो 30 सेंट इट मीन्स एक दिन में 30 सेंट कमाते थे और लेस, उससे भी कम. देन $2 अभी बताता है कि औसतन एक अकुशल जो मजदूर है मेक्स 30 सेंट पर डे और लेस देन $2 अभी. एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन $30 के हिसाब से वो $2 से भी कम आमदनी करते थे. उनकी आय $2 से साप्ताहिक कम थी. There is only
जब इतनी आमदनी कम थी तो क्या था, देयर इज वन मील, एक दिन में एक बार भोजन लेते थे। उस भोजन में क्या था, ऑनियन, प्याज, पीस ऑफ ब्रेड, रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दूध के साथ एक पल्स, अ बाउल ऑफ पल्स, कटोरा डालकर, पनीर से बिट ऑफ गॉड चीज, बकरी का पनीर, नो रोटी, नो कॉफी, न चाय, न कॉफी, नो फैट, नो कोई बसा है चर्बी कुछ, नो स्वीट, न मिठाई, न मीट। अंडरस्टैंड? $100 ईयर, देखा कहता है कि $100 ईयर, एक वर्ष में $100 इज नॉट $2 एक सप्ताह में औसतन $2 नहीं होता। मतलब एक वर्ष में $100 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सप्ताह में $2 की आमदनी नहीं होती। इवन दैट स्मॉल अमाउंट, प्रिविलेज का कहता है वो भी थोड़ी सी आमदनी कमाना इज हार्ड टू अर्न, वो भी कमाना उन लोगों के लिए मुश्किल था। बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल, उन लोगों को टोकरी बेचना, टू पुअर टू बाय देम, जो उन्हीं की तरह गरीब थे, उन ऐसी बस्ती में जहाँ रहते थे, उन्हें टोकरी बेचना भी बड़ा, इतना ही कमाना टोकरी बेच के ऐसे लोगों को बड़ा ही क्या कहते मुश्किल था, हार्ड था। दैट नो डाउट इज द रीजन, निसंदेह these children descended on me like locusts, like it describes here। क्वेश्चन आएगा, why did the children descend like locusts on the writer? लेखक के ऊपर टिड्डियों की बात क्यों टूट पड़े? लेखक कहता है यही कारण था कि वो ऐसे टूट पड़े जैसे टिड्डियों का दल हमारे ऊपर टूट पड़ा और डिसेंडेड केम डाउन। लेखक कहता आई क्यों? क्योंकि आई एक अमेरिकन। लेखक कहता है कि मैं एक अमेरिकन था। What doubtless undoubtedly, निसंदेह, the most promising market, ऐसा लग रहा था उन्हें कि मैं होपफुल मार्केट हूँ, मैं सब कुछ उनका खरीद लूंगा, मैं बहुत पैसे वाला था। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने देखा मुझे तो वे so they descended like locust on me because they thought that he was a hopeful market and he would buy all their baskets and